యూనియన్ మినిస్టర్ ఫర్ పెట్రోలియం అండ్ గ్యాస్ వారు ఒరిస్సా వాస్తవ్యులు, అంగుల్ గ్రామము, తాల్చేర్ డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి వారు ఒరిస్సా రాష్ట్రం నుంచి విద్యార్థి పరిషత్ నేషనల్ సెక్రటరీగా స్టూడెంట్ యాక్టివిటీస్లో చురుగ్గా పాల్గొని వారు ఒరిస్సా అసెంబ్లీలో ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికై లోక్సభ 14th లోక్సభలో పార్లమెంట్ మెంబర్గా 2004లో నేషనల్ లెవెల్లో భారతీయ జనతా యువమోర్చా యూత్ వింగ్ ఆఫ్ బీజేపీకి నేషనల్ ప్రెసిడెంట్గా, ఆ తర్వాత 2012లో రాజ్యసభ సభ్యునిగా వారు ఎన్నికై వారు ప్రధానంగా వారి పొలిటికల్ క్యారియర్ ఒరిస్సా నుంచి ప్రారంభించి నేషనల్ పాలిటిక్స్లో వారు పార్టీలోను ప్రభుత్వంలోను నరేంద్ర మోడీ గారి మొదటి ప్రభుత్వంలో కేంద్ర మంత్రిగా వారు కొనసాగారు. సెకండ్ టైం కూడా మళ్ళీ వారు మోదీ ప్రభుత్వంలో కేంద్ర మంత్రిగా కొనసాగుతూ ఉన్నారు. వారి తండ్రి గారు కూడా వాజ్పేయి గారి ప్రభుత్వంలో దేవేంద్ర ప్రధాన్ గారు కేంద్ర మంత్రిగా వారు బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. వారు పార్టీలో రైట్ ఫ్రమ్ 2004 ఆన్వర్డ్స్ వారు త్రిపుర, ఛత్తీస్గఢ్, కర్ణాటక, ఉత్తరాఖండ్, జార్ఖండ్, ఒరిస్సా స్టేట్స్కు వారు ఇన్ఛార్జ్గా వ్యవహరించి మరి అనేక రాష్ట్రాల్లో ఇంక్లూడింగ్ బీహార్లో కూడా మరి ప్రభుత్వంలో రావడంలో వారు కీలక పాత్ర పోషించారు. ఇప్పుడు 2014లో కూడా పెట్రోలియం ఇండిపెండెంట్ ఛార్జ్గా వారు వ్యవహరించారు. 2019 నుంచి మళ్ళీ వారు కేంద్ర మంత్రిగా కొనసాగుతూ ఈరోజు నేషనల్ పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షులు అమిత్ షా యొక్క పిలుపు మేరకు జమ్మూ కాశ్మీర్ 70 సంవత్సరాల సమస్య పరిష్కారం, రావణ కష్టంలో ఉన్నటువంటి ఆ సమస్యను నరేంద్ర మోడీ, అమిత్ షా 70 గంటల్లో పరిష్కారం చేసే అంశాన్ని కొంతమంది కుహన లౌకికవాదులు, సోకాల్డ్ అభ్యుదయవాదులు దాన్ని వక్రీకరించేటువంటి ప్రయత్నాలు చేస్తున్న సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా కూడా 370 ఆర్టికల్ మీద ప్రజలకు కలిసి కాశ్మీర్ ప్రజల ప్రయోజనాలతో పాటు దేశ ప్రయోజనాలు ఏ రకంగా ఇమిడి ఉన్నాయో చెప్పేదానికి తీసుకున్న కార్యక్రమంలో కొంతమంది ప్రముఖులను సంపర్క అభియాన్ పేరు మీద కలవడము, దాంతోపాటు ఇవాళ విద్యావంతులు అండ్ ఎలైట్ ఆఫ్ ద సొసైటీ వాళ్ళతో ప్రత్యేకంగా ఒక సమావేశం కూడా సాయంత్రం ఆ నిమిత్తం వారు ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా వుడ్ లైక్ టు అడ్రస్ ద మీడియా ఆఫ్ తెలంగాణ, కాబట్టి వారు హిందీలో వారు మాట్లాడతారు. ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ భారతీయ జనతా పార్టీ స్టేట్ యూనిట్, వన్స్ అగైన్ ఐ వెల్కమ్ సార్. क्या है भाई? नमस्कार।
तेलंगाना प्रदेश के अध्यक्ष, हम लोगों की नेता डॉक्टर लक्ष्मण जी, मेरे अत्यंत प्रिय मित्र तथा हमारी लंबे समय तक हम लोगों की नेता रहे आदरणीय नवनियुक्त केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी जी, रामचंद्र जी, मंच पे बैठे हुए सभी हमारे दल के प्रमुख मित्रगण तथा मीडिया की सभी मित्रगण, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी पार्टी की अनुरोध रक्षा करके आए। मित्रों, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, मेरे आने का उद्देश्य धारा 370 पिछले अगस्त 5 और 6 ये 2 दिनों में राज्यसभा और लोकसभा से निरस्त होने के बाद पिछले 1.5 महीने में जो अनुभव हो रही है, जो अनुभूति हो रही है, उसके बारे में देश के सामने, देश की प्रबुद्ध नागरिकों को इस विषय में अवगत कराने के लिए पार्टी की ओर से एक बहुत बड़ा जन जागरण के अभियान हाथ में लिया गया है। उस कड़ी में मैं यहाँ आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद आया था और आज मैंने, जैसे डॉक्टर साहब ने भी शायद कहा ही होगा, 3 समाज जीवन के प्रमुख व्यक्तियों को संपर्क किया, उनकी साथ चर्चा करके हमारी दृष्टिकोण और देश के सामने प्रसंग को रखा। मित्रों, मैं आजकल पेट्रोलियम और गैस के साथ साथ स्टील विभाग की भी जिम्मेवारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया है। संयोग से स्टील विभाग के अंतर्गत एनएमडीसी एक प्रमुख माइनिंग कंपनी है जिसकी हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। मैं आज एनएमडीसी कार्यालय भी गया था। एनएमडीसी एक शब्द में मैं कहूं, देश की एक प्रॉफिट मेकिंग पीएसयू है। पिछले साल जितना उन्होंने प्रोडक्शन किया था उससे इस साल एक लंबी क्वांटम जंप हम कर पाए, उसकी हमने एनएमडीसी की बोर्ड की मेंबरों के साथ एक लंबी चर्चा भी की और शाम को सार्वजनिक कार्यक्रम पे भाग लेंगे। मित्रों, जब मैं इस अवसर पे हैदराबाद में हूं, मैं पार्टी ने आपके साथ मिलने का एक अवसर दिया है। मैं 2 शब्द मेरे ओर से नया कहना चाहूंगा। कल देश की प्रधानमंत्री जी ने देश में नई रोजगार सृष्टि करने के लिए, देश की अर्थनीति को एक नई स्पिन देने के लिए जीएसटी में कुछ सुधार तो लाए ही, लेकिन उससे बड़ा कदम कल उन्होंने पिछले दुनिया के अंदर जो एक चैलेंजिंग इकोनॉमिक कंडीशन है, रशिया अमेरिका और चाइना की ट्रेड चर्चा की विफलता, खाड़ी के देशों में तनाव, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपने आप में एक नई तनाव खड़े हो रहे हैं। ये सारा स्थिति के अंदर भारत की अर्थनीति को एक स्टिमुलस देने के लिए, एक पुश देने के लिए कल प्रधानमंत्री जी ने एक प्रकार से 1,45,000 करोड़ रुपया की रिलीफ भारत की कॉरपोरेट जगत को दिया है। कॉरपोरेट टैक्स, पुराने टैक्स स्ट्रक्चर को रिविजिट करके लगभग 5% टैक्स इफेक्टिव रिडक्शन हुई है। 22% तक पहुंचने के बाद थोड़ा सरचार्ज लगा के फिर वो 25% तक आएगी। नेट रिडक्शन हुई है और विशेष करके विश्व की
मैन्युफैक्चरर्स को, भारत की कंज्यूमर, भारत की बाजार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मित्रों आज दुनिया में उत्पादनकर्ता, प्रोड्यूसर्स, they belong to India, they belong to different part of world. Offering this new tax regime to new entrepreneur, Prime Minister Modi has put a red carpet to the new investor to India. I am confident, I am hopeful. These two initiatives of Government of India in the leadership of Prime Minister Narendra Modi ji and the leadership of able Finance Minister, my sister Nirmala Sitharaman ji, Indian industry, the way they have welcomed this decision, this is an open invitation, this is a big step towards making India. I am hopeful this will have its desirable positive impact very soon. Market is already welcomed this decision. That apart, उसको छोड़ के मित्रों, मैं तेलंगाना राजनीतिक कामों में निरंतर आते रहता हूं। इस बार चुनाव के बाद पहली बार आ रहा हूं, लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार आ रहा हूं, और लोकसभा चुनाव में नेट 2-3 राज्यों ने एक नई ट्रेंड दिखाई है। कई राज्य भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले से ही थे, कई राज्य उसको रिपीट किए, लेकिन 3 राज्यों ने एक नया ट्रेंड पिछले लोकसभा चुनाव में दिखाया है। संयोग से 3 स्टेट, तेलंगाना, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, 3 ये राज्यों में भारतीय जनता पार्टी पिछले लोकसभा में, बंगाल में तो 40%, उड़ीसा में 38% और तेलंगाना में 20% वोट लेके 4, 8 और 18, 4 तेलंगाना में, 8 उड़ीसा में, 18 वेस्ट बंगाल में हमने लोकसभा की सीट को जीता। लेकिन हमें लगता है इस 3 राज्यों में सबसे ज्यादा कहीं अगर पॉलिटिकल पोलराइजेशन शुरू हो गई है, उसकी नाम है तेलंगाना। पिछले कुछ लोकसभा के उपरांत कुछ घटनाएं हुए हैं और विशेष करके यहाँ की जो स्थानीय सरकार, मैं समझ नहीं पाता हूं स्थानीय सरकार को लोकसभा विधानसभा में यहाँ की जनता की आशीर्वाद रही, मोदी जी को लोकसभा की चुनाव में देश की आशीर्वाद रही, तेलंगाना का भी अच्छी खासी समर्थन रहा। मित्र किशन रेड्डी जी लोकसभा जीत के गए, आज वो मोदी जी की मंत्रिमंडल में गृह विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग की काम भी संभाल रहे हैं। हमें उम्मीद था स्थानीय सरकार मोदी जी के साथ मिलकर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मैं आज जब कुछ विषय को समझने का कोशिश कर रहा था कि इस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना की क्या स्थिति है, यहाँ मित्रों ने कहा आवास योजना तो छोड़ दीजिए, पिछले दिनों में इन्होंने जो वादा किया था घर देने के लिए लोगों को, वो भी पूरा नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है मोदी जी का। 2022 तक भारत की सारे लोगों को, सारे बेघर लोगों को, सारे गरीब लोगों को स्थायी रूप में घर दिया जाएगा। ये जब आजादी की 75 साल पूरा हो रहा होगा तब भारत में कोई भी एक व्यक्ति ना रहे जिसकी सर के ऊपर पक्का छत ना हो। हमें अपेक्षा है तेलंगाना सरकार मोदी जी की सरकार को उसमें से कोऑपरेट करे, जो आज नहीं कर रही है। हमें कहा गया और हमने थोड़ा समीक्षा किया, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं हो रही है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में स्टेट अपने शेयर देने में विलंब कर रही है,
इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास को देश की पार्टी एबव उठ के लोगों ने समर्थन किया। बहुत दिनों की ये मांग को केंद्र सरकार ने पूरा किया। अभी तक तेलंगाना सरकार उसको राज्यों में लागू करने की कोई कदम नहीं उठा रहा है। मित्रों, राजनीति चुनाव अपनी जगह पे सही हो सकता है। अभी तो चुनाव नहीं है, 5 साल के बाद चुनाव होगा, 4.5 साल के बाद चुनाव होगा, तब देखेंगे। लेकिन जो तेलंगाना की प्रजा के हित में है, क्या तेलंगाना के गरीबों को घर नहीं मिलनी चाहिए? अगर मोदी जी उसमें से 60 रुपया की जिम्मेवारी, 100 रुपया में 60 रुपया की जिम्मेवारी लेते हैं, उसको यहां की जनता को वंचित रखनी चाहिए। आयुष्मान भारत की फायदा यहां की जनता को ना मिले। तेलंगाना का व्यक्ति देश की कहीं जाकर अगर काम करता है, आयुष्मान भारत में अगर वो जुड़ता है, तो उसको बाहर में भी चिकित्सा की सुविधा मिलती है। इसको क्यों वंचित किया जाएगा? इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन की मित्रों को, नौजवानों को पढ़ाई में और नौकरी में अगर आरक्षण की व्यवस्था की गई है एबव एंड ऑल, तो उसको यहां लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? हमें अपेक्षा है यहां की स्थानीय सरकार अपनी प्रायोरिटी को ठीक करे, कल्याणकारी योजनाओं में मोदी जी की साथ दें। यह हमारी अपेक्षा है। ये ठीक नहीं कर रहे हैं, इसीलिए शायद भारतीय जनता पार्टी की ताकत भी यहां बढ़ रही है। नए नए लोग पार्टी में रोज ज्वाइन कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है जब तक हम आने वाले दिनों में विधानसभा और लोकसभा की चुनाव की ओर जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त विकल्प तेलंगाना में खड़ा हो जाएगा। तेलंगाना में एक ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म हो जाएगा और हमें यहाँ की जनता की सेवा करने का भी मौका मिलेगा। मैं तेलंगाना के मित्रों को बधाई देता हूं, विशेष करके डॉक्टर साहब, उनकी टीम, किशन जी, रामचंद्र, सभी टीम को मैं बधाई देता हूं। जिस फोकस की तरीके से, जिस स्पेसिफिक टारगेट लेके आप काम कर रहे हैं, आपको राज्य की जनता आशीर्वाद करेगी। ये 2-3 विषय मेरे ओर से कहना था।